Hello 8th standard. Let us today begin with our English literature lesson number 3. So first two lessons and first two poems we finished, right? So on 23rd August you people have your English test. No, sorry, it is SS test, right? So in social studies you have to go through with lesson number 1, 2 and 3 of civics for 23rd August test. Okay, let us go on with English now. In English, talking about glimpses of the past, that is past पे कुछ नज़र डालना. Actually in social studies, in history lesson number 2, you people read about how Britishers started expanding their rules from Battle of Plassey to 1857, right? That is 1757 Battle of Plassey occurred, and till 1857, within these 100 years, Britishers were able to put proper control on India. And from 1857 onwards, Indians finally started with freedom fightings, right? फ्रीडम के लिए इंडियंस आवाज़ उठाने लगे. सो उसी इंसिडेंसेस के रिलेटेड ये डायलॉग है विच वी विल गो थ्रू. द मार्टायर at the function in Delhi. Okay, before this let us read it. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. 1857 को इंडिया में पहला पहली आवाज़ उठाई गई थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो इंडियंस पे टॉर्चर था वो बढ़ रहा था. सो हाउ इंडियंस स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स and how Britishers expanded rule in India. From these dialogues you will easily get idea about how it happened. The martyrs actually जो शहीद होते हैं उनको martyrs कहते हैं. At the function in Delhi, O my countrymen, let your eyes filled with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs. So this is ये तो martyr का function है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हुआ उस पर है कि आज़ादी पाने के लिए बहुत ही सेक्रीफाइसेस दिए गए. तो रिलेटेड टू दैट मतलब उन शहीदों को याद करने के रिलेटेड दिस फंक्शन इज़ हेल्ड. The company's conquest 1757 to 1849. With its superior weapon, the British East India Company was extending its power in 18th century India. See, अगर आप if you have your textbook with you, you people can open it and see carefully. ब्रिटिशर्स ने पहले सिर्फ इतने से एरिया में अपना रूल सेटअप किया था. धीरे धीरे दिस इज 1765 से लेकर 1857 तक धीरे धीरे दे एक्सपेंडेड इन होल कंट्री. ओके, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. सो जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो एक दूसरे के साथ बहुत लगते थे वी कैन टेल. अपने अंडर दूसरों का एरिया भी अपने अंडर करने के लिए जिस तरह से दे वर ट्राइंग इन दैट दे थॉट दैट दे शुड टेक हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स वर रेडी टू हेल्प देम. बट लेटर ऑन ब्रिटिशर ने उन्हीं के एरिया में कब्ज़ा किया था. पहले उन्होंने इंडियंस की हेल्प की एक दूसरे को दे वर हैविंग पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल.
Okay, the rivalries, the rivalries helped the East India Company, and it could easily subdue Indian princes one by one. सो जो राइवल्स एक दूसरे के इंडिया में जो राजाज थे वो एक दूसरे के ही दुश्मन बने हुए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत इजी हो गया इंडिया में अपना रूल एक्सपेंड करने को. A far-seeing ruler like brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. In our SS book we studied almost 3 wars between Tipu Sultan and between Britishers held. So 3 wars में जीत तो इसी की हो रही थी, that is टिपू सुल्तान की ही हो रही थी. But later on in third war, finally when Tipu Sultan died, then Britishers were able to rule on Mysore. Thank God there is a peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. How did Indian reacts to these conquests? Actually Britishers बता नहीं रहे थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर राजाओं को खुद ही लड़वा रहे थे. ओके, और लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारी अच्छाई के लिए हमारे दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, तो अच्छा है ब्रिटिशर्स आर हेयर. The white man has killed the dethroned our king. Some kings were not good, but after all they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. So पहले तो खुशी थी, बट अब उनको धीरे धीरे पता चल गया कि जो वाइट मैन है वो हमें ही स्लेव बना रहे हैं, हमें ही वो हमारे राजा एक दूसरे के साथ लड़कर मर गए and Britishers started ruling on us. British rule from 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to women. So now these things were happening. रिलीजियस बिलीव्स बहुत फैल रहे थे, अंधविश्वास वी कैन टेल. सी रिलीजियस बिलीफ अंधविश्वास नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर गलत बातें लोगों के दिमाग में डालना, दैट इज़ सुपरस्टिशन. ओके, तो यहाँ पे वही हो रहा था. जो रिलीजियस साधु संत थे वो लोग अनटचेबिलिटी को ज़्यादा प्रिवेल कर रहे थे, देन चाइल्ड मैरिज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे कि छोटी उम्र में ही शादी हो जानी चाहिए. और फिर लोगों का ये मानना हो गया था कि जो भी गलत काम होता है तो वो लेडीज़ की, वुमेन की वजह से ही होता है. सो दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन सेक. द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट. द ब्रिटिशर्स स्कॉन्ड दैम. सच्चाई ये थी कि इंडियंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ या फिर धर्म के नाम पर ऐसी सब बातें फैला रहे थे कि वो टूट चुके थे अंदर से, एक दूसरे के वो लोग दुश्मन बन चुके थे, और उसी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स टुक. द नेशन आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. ट्रू योर ऑनर, बट आई एम ऑनेस्ट. सो अब सी, यू कैन सी हियर इंडियन इज स्टैंडिंग बाय जॉइनिंग हैंड एंड ब्रिटिशर्स आर टॉकिंग विद वन अनदर. सो इंडिया के लोग क्या करते थे कि कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते थे, राइट, एंड ब्रिटिशर्स उन्हीं लोगों का फ़ायदा उठाते थे, जबकि वो ब्रिटिशर्स का ये भी मानना था कि इस कंट्री में ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो कोई लोग इंडियंस उनके सामने जो भी उनके नौकर बन के रहने को तैयार होते तो वो उनको अच्छे से ट्रीट करते. Being merchants, Britishers wanted quick profit. Their heavy taxes forced farmers to abandon their field. So, अब Britishers जो थे वो businessmen हो चुके थे, and businessmen, he work only to earn more and more profit. So Britishers were also with this motive to earn more and more profit.
in which they finally started with imposing heavy tax on people. तो ज़्यादा टैक्स ना भरने की वजह से इंडियन पीपल को अपने ही फार्म्स ब्रिटिशर्स को देने पड़े. But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. So फार्मर से वो लोग टैक्स वसूल करने आते. हालांकि टैक्स के रिलेटेड जो भी अमाउंट वो इकट्ठा करते वो दूसरे ब्रिटिशर्स ही उनसे ले जाते. बट देन टू देयर वॉज सच ए क्योस बिटवीन ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स इंडियंस की एक भी बात नहीं सुनते और उनसे टैक्स वसूल करने की कोशिश करते. सो दे वॉन्ड इंडियंस दैट पे टैक्स बाय विद इन अ वीक, अदरवाइज वी विल पुट यू इन jail. Still the British invented other methods which gave them more profits. So ब्रिटिशर्स ने और मेथड भी इन्वेंट कर लिए थे जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो. कौन से? The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India. A good idea. The East India Company laws began to cripple Indian industries. So now Britishers were ruling. So Britishers finally decided to gain more profit with another ways also. So they finally decided not to impose import duty on the goods which would be brought from England. इंग्लैंड से जो गुड्स बनकर इंडिया में आएंगे उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. उससे क्या होगा कि लोगों को गुड्स मिलेंगे और प्रॉफिट जो डायरेक्ट प्रॉफिट होगा वो ब्रिटिशर्स का होगा. Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. भूख के मारे 15 लाख लोग मर गए थे. सूखा पड़ गया था. फेमाइन वी कैन टेल, no food to eat for Indians because more and more profit was taken by Britishers. The British policies ruined the export artisans and their business. और ब्रिटिशर्स अब अपने गुड्स इंडिया में ला रहे थे जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ बहुत सफ़र कर रही थी. इंडियंस वर नॉट एबल टू सेल देयर गुड्स to earn good income. Now time comes of Ram Mohan Roy from 1772 to 1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. So Ram Mohan Roy को समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है कंट्री में. इतने लोग आफ्टर ऑल मर रहे हैं भूख से. So Britishers are making Indians to suffer. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. So राम मोहन रॉय ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमारी कंट्री में जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है. तो सबसे पहले तो हमारी कंट्री को जो अंदर से ख़त्म कर रहे हैं उनको रोकना होगा और हमें अच्छी प्रोग्रेस विद इन कंट्री करना होगा. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, cows are of different color but the color of the milk is the same. Different teachers have different opinion but the essence of every religion is the same. See, he was having good thinking. तो दैट इज़ अगर हम रिलीजन कंपेयर करें तो अलग अलग रिलीजन है लेकिन गॉड इज़ वन, यही सिखाया जाता है हर एक रिलीजन में. सो अलग अलग काउस के कलर्स होंगे बट जो वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ दैट इज़ ऑफ सेम कलर, राइट. आफ्टर ऑल द रिलीजन्स एंड ऑल, बट भगवान तो एक ही है. देन ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. सो उनको अच्छी नॉलेज थी तो उनका मानना यही था कि नॉलेज एकदम प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक ही होना चाहिए.
He started newspaper, but suspicious British stopped them in 1823. So राजा राम मोहन रॉय ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, दैट इज़ प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, सो दैट लोगों को पता चलने लगे कि क्या हो रहा है, बट ब्रिटिशर्स ने वो न्यूज़पेपर स्टॉप करवा दिया. ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी what made the British powerful. There he told them. So राजा राम मोहन रॉय को ये भी पता करना था कि ऐसा तो क्या है कि इंग्लैंड बहुत ही अमीर होता जा रहा है. So he went to England to see what kind of work they are doing. And there we accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility of ruler owes to his subject. So मोहन रॉय को पता चला कि किस तरह से रूलर बन के वो लोग इंडिया को ही लूट रहे हैं और अपनी कंट्री प्रॉस्पर कर रहे हैं. सो वो वहाँ पर स्पीच देते हुए कहते हैं कि इंडिया आपका एक सब्जेक्ट है जहाँ से आप इनकम गेन कर रहे हो, तो एज अ रूलर राजा के तौर पर आपकी ड्यूटी बनती है प्रजा को संभालने की, दैट इज़ इंडियंस को संभालने की. देन ऑपरेशन, दैट इज़ फ्रॉम 1865 to 1835. But the British continued to oppress Indians in 1818. They had passed Regulation 3. Under it, Indian could be jailed without trial in a court. So 1818 में एक रेगुलेशन 3 एक्ट पास किया गया बाय ब्रिटिशर्स, जिससे ये पॉइंट था कि एनी इंडियन कैन बी जेल्ड और उसको कोर्ट नहीं भी लेकर जाए. लाइक अभी तो रूल है कि अगर किसी को भी जेल और किसी को भी पुलिस अरेस्ट करते हैं तो ही और शी शुड बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ जज विद इन 24 आवर्स. बट उस वक्त ब्रिटिशर्स ने सिस्टम ऐसा बना दिया था कि नो मैटर, नॉट इवन विद इन 24 आवर्स इज़ ओके, बट जेल में बिना कोर्ट लेकर जाए भी इंडियंस को रखें. All the time Britishers officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. So ब्रिटिशर्स एक तो इंडिया में काम करके सैलरीज भी अच्छी अर्न कर रहे थे और इंडिया में they even started their own business also. By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. So 7 crore rupees तक के goods 1829 में ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करने लगे थे गुड्स को, दैट इज़ ब्रिटिश से, फ्रॉम ब्रिटिश एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया में इंपोर्ट करते थे. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड on the company's loot while Indians industries begin to die. So ब्रिटिशर्स अमीर होते गए और इंडियन इंडस्ट्री ख़त्म होती गई. एंड देन गवर्नर बेंटिक वापस घर अपने कंट्री वापस गए. द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. सो वहाँ पर जाकर उन्होंने कॉटन के बारे में बताया और फाइनली ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा लालच आया कि वहाँ से अगर हम कॉटन लेकर आए, उसका अगर हम फैब्रिक बनाए, प्रिंट करें तो बहुत ही अच्छा सेल होगा. दिस इज़ देयर इन आवर SS बुक एज वेल. नाउ डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम 1835 to 1856. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, the Englishman named Macaulay suggested a change. Now, education इंडिया में जो एजुकेशन था वो पर्शियन या संस्कृत लैंग्वेज में चल रहा था. तो इंग्लिशमैन मकाउले ने सजेस्ट किया कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल now more English people were present in India and
if English people were dealing with Indians, so Indians also should understand their language. We should teach the natives through the English language. I agree. English education produced clerk to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectual. So Britishers ने finally English education India में introduce किया and they started appointing certain clerks, but they were not having any freedom. They were to work under British only. So we must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievance to the British Parliament. So now Indians were doing meetings कि हमें अपने भाइयों को भी इंग्लिश सिखाना चाहिए ताकि ब्रिटिशर्स उनको चीट ना करें. That is, common public also should learn English. By 1856, the British had conquered the whole India. 1856 तक इतनी जो येलोइश पोर्शन दिखाई दे रहा है that was not under Britishers, but this orange portion was mostly under British area. They cared little about needs of Indians. Britishers जो थे वो अपनी ज़्यादा केयर करते थे and they were not caring about Indians properly. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. So अब धीरे धीरे लोगों को पता चला था कि हमारे जो राजा है वो पपेट, दैट इज़ जैसे ह्यूमन बीइंग बोले वैसे पपेट करे. तो इन दैट वे हमारे राजा बन चुके हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारी अपनी जॉब्स भी खोनी पड़ी. इवन हमारी ज़मीन भी हमें लॉस्ट करनी पड़ी. और हमारे जो काफ़ी हमारे इंडियन ब्रदर्स ही हैं जो ब्रिटिशर्स के फेवर में आ चुके हैं. सो बोलने से कुछ नहीं होगा, डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. देन दिस स्पार्क 1855 to 57. Taxes continued to ruin the peasants in Bengal, and Santhes who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose the rebellion and massacred European and their supporters' skill. So finally 1855 तक अब तो इंडियंस भी इरिटेट होने लगे थे कि टैक्सेस, कितना टैक्स पे करें, हम हमारी ज़मीन में काम कर रहे हैं तो भी हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है. Discontent were brewing in the East India Company's army too. So ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में भी अब कुछ डिफरेंसेस आना शुरू हो गया था. The white soldier get huge pay mentioned to live in servants, while we get a pittance and slow promotion. The Angers ask us to cross the sea, which is against our religion, who is the Topiwals, to abolish our age-old customs. We must drive out the Angers. Sepoy Mangal Pandey attacked and the adjutant of his regiment and was executed. What was happening now? Britishers अपनी ही आर्मी सेटअप कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स हैव टेकन इंडियंस ऑल्सो इन देयर आर्मी. और ब्रिटिशर्स को पता था कि इंडिया में रिलीजन के नाम पर बहुत ब्लाइंड बिलीफ चल रहे हैं. लाइक वी रेड कि अगर नदी के उस पार भी जाओगे तो आपका धर्म चेंज हो जाएगा, आप इस धर्म में बिलोंग नहीं करोगे एंड लॉट मोर. तो ब्रिटिशर्स जानबूझकर इंडियंस को रिवर क्रॉस करने को बोलते और इंडियंस मजबूरी में रिवर क्रॉस करेंगे तो वो अपने धर्म से बाइकआउट कर दिए जाएंगे. सो दे वर कन्फ्यूज्ड विद दीज ऑल स्टेप्स ऑफ ब्रिटिशर्स.
and Britishers were paying very good salary to British people, those who were in army, military, and they were not giving good salary or promotion to Indians. So Mangal Pandey was one person who finally began the war actually. Okay, that is Mangal Pandey ने अपनी आवाज़ उठाई थी कि वो रिवर क्रॉस नहीं करेंगे, और उस वक्त क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, दे वर ब्रिंगिंग बुलेट्स एंड ऑल विद कार्ट्रेज, जो वो गन्स में यूज़ होता है, बारूद कार्ट्रेज, उस पर काऊ की फ्लैश, काऊ की स्किन के साथ बनता था वो. एंड इंडियंस, लॉट्स ऑफ ब्राह्मण्स who are not eating flesh of animals and all, and वो जो कार्ट्रेज था वो चलाने से पहले मुंह में डालना पड़ता, and then they were to go on with cartridge. So Indians were not at all ready for this, and Mangal Pandey finally raised their voice against this situation. और उनके बाद काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया, बट मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था. Thousands of other spoils revolted. These were stripped of their uniforms. So they were stripped. That is, then मंगल पांडे की आवाज़ उठाने के बाद और भी कई आवाज़ें उठी, और भी इंडियंस उठे, so that ब्रिटिशर्स ऐसा हमारे साथ ना करें. Few Englishmen had cared to understand Indian customs and people's mind. कुछ ब्रिटिशर्स ने समझा भी कि यस इंडियन का कस्टम है, ब्राह्मण्स हैं, रिलीजन है. देन प्राउड ब्राह्मण्स सोल्जर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bit is made up of fat of cows and pigs. What? The white man has deceived us too. So this is what, अब इंडियंस को ये भी पता चला कि जो बुलेट्स वो चलाने वाले हैं उस पर काउज एंड पिग्स का फैट लगा हुआ है. सो दिस वॉज अगेन रॉन्ग अकॉर्डिंग टू रिलीजन. Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. So अब ब्रिटिशर्स जो थे वो लोगों की विलेज टू विलेज हेल्प करने लगे कि हमें हेल्प चाहिए. तो लोग वैसे ही भूख से मर रहे थे, तो people somewhere started coming in favor of Britishers. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. Death to the foreigners. The masses gave all help and shelter to the patriots. So मंगल पांडे की आवाज़ उठाने के बाद ब्रिटिशर्स जितनी भी कोशिश कर रहे थे इंडियंस को डिवाइड करने की, बट इंडियंस ऑल टुगेदर came against Britishers and finally they started revolt. अब रिवॉल्ट लेना शुरू हो गया था. Then there was a violent outbreak in Meerut. मंगल पांडे का जो इंसिडेंस हुआ था that was held in Meerut. So finally मेरठ में बहुत ही ब्रिटिशर्स और इंडियंस में लड़ाई होना शुरू हो गया. The sepoys marched to Delhi. Even Indians जो थे वो दिल्ली तक मार्च किए. Long live our emperor बहादुर शाह. अब औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्परर तो कोई था नहीं, बट मुग़ल एम्परर ब्रिटिशर्स से पहले लीव करते थे, रूल करते थे. सो इंडियंस को लगा कि एक बार फिर मुग़ल एम्परर का ही राज लाते हैं. तो दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र थे. तो इंडियंस फाइनली वेंट टू दिल्ली एंड दे मेड बहादुर शाह ज़फ़र टू become Mughal emperor once again for Delhi. The rebellion spread wider. That is, जो इंडियंस थे वो अब हर जगह में फैल चुके थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे. Many landlords had lost their land because of the British policies and they were sore. The white man's rules must end. Yes, we will help you. सो काफ़ी ज़मीन जायदाद ख़त्म हो चुकी थी लोगों की. तो अब फाइनली इंडियंस वर गेटिंग टुगेदर कि ब्रिटिशर्स का जो ये रूल है वो अब नहीं रहना चाहिए. नाउ
The fight for freedom, 1857. Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. सो यू नो राजा, अलग अलग प्रोविंसेस के राजाज थे, महारानीज थी, तो उन लोगों के मन में भी नफ़रत थी ब्रिटिशर्स के लिए, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उनका राज्य उनसे छीना था. पॉपुलर रीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद told the people, rise brothers, rise, the Angrez is ruining our land. So finally मौलवी also started raising their voice कि ये जो अंग्रेज़ हैं वो हमारी धरती को ख़त्म कर रहे हैं, तो अब उठो, अब चुप मत रहो. They joined the upsurge against the foreigners. So महारानी बेगम ने भी ज्वाइन किया फ्रीडम फाइटर्स को. The people rose everywhere in बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद. सो अलग अलग एरियाज़ में लोग अब फ्रीडम के लिए यूनाइटेड हो गए थे. अजीमुल्ला खान told तात्या टोपे, we should have पेशवा नाना साहेब as our leader in this war of independence. सो तात्या टोपे को कहा गया कि हम पेशवा नाना को अपना लीडर बनाएंगे और ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पाने की कोशिश करेंगे. The Patriot pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. So North India में भी काफ़ी ब्रिटिशर्स और इंडियंस का वॉर फाइट हुआ. 8-year-old Kanwar Singh of Bihar received the bullet in his wrist. तो 8-year-old थे, तो 8-year-old अभी तो छोटे ही थे, लेकिन उनको भी बुलेट लगा. ओके. मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. तो वो अपने मॉम को बोलकर गए कि ये मेरी तरफ से लास्ट तोहफ़ा है आपके लिए. फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट्स, S.T. सावंत. सो इस तरह से फाइनली ब्रिटिशर्स अपने आप को इंडिया में एक्सपेंड करने लगे. इंडियन के लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा गए. एक्चुअली दिस इज़ हिस्टोरिक लेसन एंड इन हिस्ट्री ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन दिस इंसिडेंसेस ओनली. ओके. Comprehension check will be your work to do. You read this, understood this, you can follow this. Then working with text, I will be giving you answers of these 1 to 6 questions, which I will give you PDF. You simply copy down questions and write answers in your notebook for your lesson number 3 of English. Okay everyone, just go through this whole video, don't miss it. Okay, and please complete your book on time. Thank you.